गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सभी आप फाइन होंगे. माय सेल्फ जतिन दानी and I am going to teach you the first chapter of your NCERT of 10th class chemistry. The name of the chapter, the chemical equations, reactions and equation. In the previous lecture you have learned about the equations and reactions both, and आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि that how we can balance the chemical equations. Now in this lecture we are going to learn about the types of reaction. That हमारे पास कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं in your NCERT. The first chemical reaction that is going to be take place is combination reaction. This is the first type that is in your NCERT, combination reaction. Second type, दूसरी टाइप कौन सी आपके NCERT में दे रखी है, that is your decomposition reaction. थर्ड कौन सी टाइप? थर्ड टाइप है बेटा, that is your displacement reaction. The fourth type that you are having is double displacement. Double displacement and double displacement, two more types are there. One is your precipitate reaction and the second one is neutralization reaction. And the fifth that we are having, the fifth part that we are having is your redox reaction. So here we are having five type of the reaction that is given in your NCERT. Among that five type, double displacement further categorized into two part. One is your precipitate reaction and neutralization. And remember that in a combination reaction, you will going to learn about exothermic, and in a decomposition you are going to learn about endothermic reaction. These are the two different categories of combination and decomposition. So these are the types of the chemical reactions that are given in your NCERT. और हम लोग इन्हीं रिएक्शन को पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, मतलब इनकी एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. The first type we are having is combination reaction. Now firstly, what is the definition of combination reaction? Definition is when two or more reactants react with each other to form single product. ये डेफिनेशन है बेटा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करने का मतलब कंबाइन कर रहे हैं. यहाँ पे देखो वर्ड कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन कर रहे हैं. रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे. रिएक्टेंट्स react to form products. Simple, we can denote it by the reaction
R1, R2. What is R1? R1 and R2, these are the reactants when they combine according to the definition. जब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. द सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट इज the compound very useful in your daily life. Without that compound life is not possible. That compound is water. Now we see how the water will be going to form. Let us take an example. H2 plus O2 give rise to what? H2O. H2 plus O2 give rise to H2O. If we are going to balance it in the previous lecture, पहले भी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में बैलेंसिंग सीखा था, तो उसमें आपने क्या बोला था कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही बैलेंस है. तो ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम. नाउ वी विल पुट 2 हियर, यहाँ पे 2 लगा देंगे. दैट मींस ऑक्सीजन कितने होंगे यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, 2 2 बैलेंस. हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट एग्जांपल of what, combination reaction. Second example we can take H2 plus Cl2, hydrogen plus chlorine give rise to what, HCl, hydrochloric acid. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे. So these are the simple example of what, which reaction, combination reaction. From the name, from the definition, when two or more reactants react, ये दोनों reactants हैं, आपस में react कर रहे हैं और एक single product की formation, this is a product, single product की formation कर रहे हैं. ये देखो 2 reactant single product की formation कर रहे हैं. तो such reactions को हम कौन सी reaction बोल देते हैं, combination reactions. Is that clear to everyone? Now we will discuss more example related to this topic. Now next, if we see another example, we are taking example of another. We have a carbon. Carbon, let us say coal in a solid form. We are going to burn this carbon in the presence of what? Oxygen. And what will be going to produce? It will going to produce what? Carbon dioxide. Gas form होगी. तो ये गैस, यहाँ पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस यहाँ पे एक और सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी. किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हीट एज वेल एज लाइट. लाइट की फॉर्मेशन होगी, बहुत कम होगी, स्टार्टिंग में होगी, जब तक कोल में गैसेस प्रेजेंट है तब तक लाइट होगी, उसके बाद लाइट होगी, इसकी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो मेन चीज हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, दैट इज हीट. हीट विल बी प्रोड्यूस्ड दिस रिएक्शन. बट यहाँ पे अगर हम देखें इस रिएक्शन को, 2 सब्सटेंस है हमारे पास, यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस हैं. ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. कंबाइन कर रहे हैं, हल्का सा हमने इसको हीट भी कर लिया, थोड़ा सा हीट कितना हीट करना है हमें पता होना चाहिए कि दैट वी हैव टू हीट इट अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर आपको पता ही है, ये वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, दैट इट कैचेस फायर. सो इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर तक क्या करेंगे, हीट करेंगे. जैसे इग्निशन टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास हीट की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस हीट इज रिलीज्ड. नाउ वेट फॉर दिस हीट बेटा. नेक्स्ट इक्वेशन में आपको बताएंगे हीट, ये इसका हीट फॉर्मेशन से इस रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. Next example we are having, taken a beaker. In that beaker, add water and some amount of calcium oxide. Formula is CaO, calcium oxide. Calcium oxide, its common name is
quicklime. Its common name is quicklime and it is in solid form. आप लोगों ने देखा हुआ है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, when we are going to mark the ground में मार्किंग करते हैं ना, at that time we see a white color powder by which we are going to make the lanes draw करते हैं, track draw करते हैं, तो वो किस चीज से करते हैं, that is calcium oxide. Now what we have done, we have added water in it. जैसे हमने इसमें वाटर को ऐड किया तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. रिएक्शन क्या होगा, just see on the board, calcium oxide, in which form it is, solid. Then we have H2O, liquid. Then they are going to combine. Combine means which reaction? Combination. So they are going to form what? CaO, that is OH twice. CaO H twice. They are going to form it, and this is known as what? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. It will going to form calcium hydroxide, and this calcium hydroxide is also used for whitewashing of walls. मतलब दीवारों पे जो हम रंग करते हैं, व्हाइट कलर का रंग करते हैं, तो ये हमारे पास पाउडर होगा, उसमें पानी मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसी के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, ब्रश के साथ हम वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं व्हाइट वॉश के लिए, रंग करने के लिए. तो इसका अनदर नेम भी है, अनदर नेम इज स्लेक्ड लाइम. सो 10th class students, please remember, sometime in a board there is a question board में पक्का पूछता है. बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो बोर्ड जो एग्जाम पेपर सेट होगा, that name the substance whose solution, name the substance whose solution is used for whitewashing of walls. कुछ बच्चे इसका आंसर गलत लिख के आते हैं, वो लिख के आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैंने बोला नेम द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, कौन से सब्सटेंस का बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड. तो सब्सटेंस कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, नेम द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस, सब्सटेंस इज सॉलिड, कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज द सब्सटेंस एंड दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. इसी के सब्सटेंस के सॉल्यूशन को व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं. So this is the substance of whom solution is used for white washing. Now this is both are the example of combination, but in this reaction when the reaction is proceeding, तो reaction चल रही होगी ना बीकर में, आप बीकर को टच करोगे, हाथ लगाकर देखोगे, then you will observe जो आपने स्टार्टिंग में बीकर रखा था वो तो बिल्कुल ठंडा था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बड़ा डाउन था, लेकिन जैसे ही इनकी रिएक्शन स्टार्ट होगी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, दैट मींस यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हीट की फॉर्मेशन होगी. अगर हीट की फॉर्मेशन यहां पे हो रही है तो दैट मींस ये दो रिएक्शंस ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन की एग्जांपल है, पर दोनों में हीट प्रोड्यूस हो रही है. रिमेंबर दैट द रिएक्शन in which heat is produced, the reaction in which heat is produced is called, क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आप लोगों ने दिमाग में रखना है, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक. फ्रॉम देयर यू कैन लर्न दैट व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन in which lot of amount of heat is produced. Not if some amount of heat is produced, that doesn't mean कि एक्सोथर्मिक नहीं है, वो भी एक्सोथर्मिक है. मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, उस रिएक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
So in this topic we have covered the two topics. The first topic is the combination reaction, its sub equation, that is your exothermic reaction. And another example, now we are proceeding toward this equation in a, how we are going to use this equation in a daily life. Just see here. Let us suppose a person wants a whitewash in their house. तो एक बंदा जाता है कि उसने अपने घर पे रंग करवाना है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का रंग करवाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ले आएगा, साथ में क्या मिक्स कर देगा, वाटर मिक्स कर देगा। वाटर मिक्स करने के बाद हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास CaOH twice, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है मेरे पास बीकर में या ड्रम में, जिसके साथ मैंने क्या करना, अभी व्हाइट वॉश कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे मैंने ये चीज CaOH twice को मैंने यहां पे क्या कर दिया, वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देगा, वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल बी देयर इज गैस, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड which is present in atmosphere. Now कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, what it will do, it will going to react with the calcium hydroxide, रिएक्शन होगी, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वहां पे एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वो सब्सटेंस होगा आपका, द नेम ऑफ द सब्सटेंस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये सब्सटेंस यहां पे फॉर्म्ड हो जाएगा, water will be evaporated from the walls will be going to dry, सूख जाएंगी, water evaporate हो जाएगा, पीछे ही बच जाएगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट will be going to form। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे एट दैट टाइम कि दैट जो हमारे पास ये CaCO3 बन गया, इसी की फॉर्मेशन के कारण आपके जो वॉल्स हैं उनका जो सरफेस होगा वो बड़ा शाइनिंग सरफेस हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण। तो अगर इसके कारण व्हाइट वॉल जो है आपकी शाइनिंग हो रही है, तो इसका जो फॉर्मूला है, जब साइंटिस्ट ने आगे चेक किया, थोड़ा सा एनालाइज किया, तो उन्होंने देखा जो हमारे पास मार्बल होता है, मार्बल होना हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, तो मार्बल के फॉर्मूला जो था, हमारे मार्बल का जो फॉर्मूला था और जो कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट वॉश के बाद फॉर्मूला था, दोनों का सेम था। So marble is also one of the form of calcium carbonate, and calcium carbonate का another name, that is common name, is known as, very common name, that is your limestone. This is the common name of what? Calcium carbonate. The next we are having, that is a decomposition reaction. If you want to learn about the decomposition reaction, then please do not forget to subscribe the channel and do not forget to share the link, because if you want that notification must be there on your mobile that next video is uploaded, please do not forget to subscribe the button. Subscribe करना मत भूलना। Thank you.